गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग सवेरा। आज हम फुल बॉडी योगा करने वाले हैं और किसी भी योगा को शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी है वार्म अप। तो योगा स्टार्ट करने से पहले हम शुरू करेंगे वार्म अप। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। टेक अ डीप इनहेल and slow exhale. Open your palm, close your eyes. Deep inhale, slow exhale. ऐसा हम 3 बार करेंगे। Smile on your face. Connect yourself with your breath. Now come back to your normal position. Now neck rotation. First we will do up and down. So slowly take your neck back, upside, and slowly come down. Up with inhale, down with exhale. One more time. Inhale, exhale. Now the next rotation, right to left, left to right. Inhale and exhale. Inhale and come back to the center. Exhale. Inhale, come to the center. Exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale, and inhale. Now we will rotate our neck clockwise and then anti-clockwise 3 times. Inhale, exhale. Slowly. Inhale, exhale. Smile on your face. Inhale and exhale. Now anti-clockwise. Inhale, exhale. Close your eyes. Inhale and exhale. Inhale and last, exhale. Now shoulder rotation. Stand straight. हाथों को ऐसे रख लीजिए. Now inside, like this. जितना हो सके पीछे अपने कंधों को करें. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now just opposite direction.
स्ट्रेट योर हैंड, हाथ सीधा रखें और शोल्डर को रोटेट करें ऐसे। अपोजिट डायरेक्शन। डन। अब हम अपने कमर की एक्सरसाइज करेंगे, हिप रोटेशन क्लॉकवाइज। Stand straight. Now ankle movement। अपना पूरा वेट आप अपने लेफ्ट लेग पे दें, राइट लेग ऊपर, और एंकल को रोटेट करें। 4 and 5। Now anti-clockwise। 1 2 3 4 and 5। सेम विद द लेफ्ट लेग। पैर को ऐसे करें। 1 2 3 4 and 5। Opposite direction। 1 2 3 4 and 5। Come back। Now दोनों हाथों को ऐसे रख लें और पीछे की ओर पुश करें। स्पाइन ट्विस्ट। जितना हो सके पीछे बेंड करने की कोशिश करेंगे। Now arm rotation। Anti-clock। Now side by side। वन, ऊपर देखिए। 2 3, जितना हो सके ऊपर स्ट्रेच करें। 5 6 7 8 9 and the last one 10। नाउ इनहेल के साथ हम ऊपर देखेंगे और एक्सहेल के साथ हम नीचे आएंगे। दोनों हाथों को ऐसे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट टाइम। इनहेल,
एक्सहेल। किसी भी वार्म अप या किसी भी योगा में अगर कोई शोल्डर ओपनिंग का कोई भी योगा हो, उसमें आप पूरी कोशिश करें अपने आर्म्स को ओपन करने के लिए। इससे क्या है, आपके हार्ट्स और आपके लंग्स, जितने आपके लंग्स में एयर अंदर जाएगी उतना ही ज़्यादा आपके हार्ट्स और लंग मजबूत होंगे। तो जितना हो सके आप अपने हाथों को पूरा फैलाने की कोशिश करें। चलिए अब हम अपना एक्सरसाइज अपना योगा शुरू करते हैं। तो अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। इसके लिए आप सीधे ऐसे खड़े हो जाएं। नमस्कार मुद्रा। Inhale and exhale at this time. Inhale and bend backward as much as you can. Exhale and bend down. Right leg back. अगर आप बिगनर हैं तो आप नीज़ को ऐसे भी रख सकते हैं, और अगर आप होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से बिना नी टच किए फ्लोर पे तो वेल एंड गुड। दूसरा पैर भी इस तरीके से डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। अष्टांग नमस्कार। नीज डाउन, शोल्डर एंड चिन डाउन। धीरे से स्लाइड करें इनहेल करते हुए। भुजंगासन। Come back to downward dog position. अपना दाहिना पैर आगे, पादहस्तासन। Inhale, bend backward and exhale, come to नमस्कार मुद्रा। अब यही हम करेंगे अपने लेफ़्ट साइड से। अश्व संचालनासन, डाउनवर्ड डॉग पोजीशन, knees down, Ashtanga Namaskar, hold your breath. Bhujangasana, inhale, exhale, inhale, exhale here, inhale and exhale as much as you can. Open your lungs and chest. ये हुआ हमारा एक राउंड, means 12 from right side and 12 from left side. It will complete one round only. So we will do one more round with some variations. We'll just try some variations also. Namaskar Mudra. Inhale, exhale, inhale, exhale, high plank position, hold it. 1, 2, 3, 4 and 5. Hold your breath. Inhale and exhale, high plank position again.
Right leg forward again. Inhale. Inhale here. And exhale. We'll do it from another side also. Namaskar Mudra. Inhale. And exhale. Inhale. Hold it in high plank position. Knees down. Bhujangasana. With inhale, exhale and come to high plank. Exhale and inhale and bend backward. And exhale. Inhale and exhale at this time. Inhale. Exhale. Take your right leg back. This time we will do plank rotation. 1, 2, 3, 4, 5, and last time 1, 6. Knees down. Exhale and come to high plank again. 1, 2, 3, 4, 5, and last one, 6. Exhale and inhale. Exhale and come back. सेम हम करेंगे अब लेफ्ट लेग के साथ. While doing this सूर्य नमस्कार करते करते में ही आप कैलोरी बर्न करना शुरू कर देंगे. नमस्कार मुद्रा. बेंड बैक. एक्सेल. हाई प्लैंक. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Knees down. Ashtanga Namaskar. Bhujangasana. And exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Last one, 6.
अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन विद एक्सेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इसको थोड़ा और हम फास्ट करेंगे और इंटेंस करेंगे तो इसके रिजल्ट्स तो बहुत ही अच्छे आएंगे। तो किसी भी योगा को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। इन दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से बांध लें और ऊपर की ओर अपवर्ड फेसिंग करके धीरे धीरे अपने एड़ियों को उठाने की कोशिश करें। जितना हो सके उतना स्ट्रेच करें ऊपर की ओर। बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए जैसे कोई आपको ऊपर से खींच रहा है, पुल कर रहा। इससे आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट होती है, स्पेशली आपका स्पाइन पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। जितना हो सके होल्ड करें 5 सेकंड 10 सेकंड और फिर धीरे से नीचे आ जाएं। इसको हम एक बार और करेंगे क्योंकि हमारी अपनी पूरी बॉडी को चार्ज करना है। एकदम पूरी अपनी बॉडी को टाइट कर लें ऊपर की ओर। होल्ड करें और फिर धीरे से नीचे आ जाएं। अब हम एक बार और कर लेते हैं इसको फटाफट। एड़ी को जितना हो सके उठाने की कोशिश करें ऊपर की ओर, तब तक जब तक बस गिरे ना आप। बैलेंस बनाने की कोशिश करें अपने पंजों पे। थ्री 2 and 1। नीचे आ जाए। अब हम करेंगे ट्री पोज। अपने दाहिने पैर को ऐसे उठा के बैलेंस बनाते हुए और दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में। 1 2 3 4 and 5। Calm down। यही फिर से हम रिपीट करेंगे अपने बाएं पैर से। One, 2, 3, 4 and 5। स्लोली नीचे आ जाए।
एक बार राइट लेग और फिर लेफ़्ट लेग से हम फिर से करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके बॉडी का बैलेंस उतना ही बढ़िया होता चला जाएगा। वन, टू, थ्री, फोर and 5. Slowly come down. Hold it. 1, 2, 3, 4 and 5. अब हम ऐसे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को अपने साइड में कंधे के बराबर पैरेलल रखते हुए, और राइट हैंड से लेफ़्ट लेग को छूने की कोशिश करेंगे। और यहाँ हमने 10 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। आसनों को अब हम 2 आसनों को एक साथ मिक्स करके वेरिएशन लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप सीधे खड़े हो जाइए और वॉरियर 3 और ट्री पोज को हम मिक्स करके करेंगे। अपने बॉडी को ऐसे बैलेंस कर लीजिए वॉरियर 3 में। और धीरे से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, warrior 3, tree pose, inhale and exhale, सेम हम दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। इधर से कर लेते हैं। कम टू द वॉरियर 3, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Try to balance your body.
exhale, one more time, inhale, done here. Now, अब यहाँ से सीधे हम क्रेसेंट लंज में आ जाएंगे। आपका ये पैर पूरी तरह से स्ट्रेट रहेगा, ये हील्स पूरे आपके फर्स्ट से 90 डिग्री एंगल पे रहेंगे। ये पैर पूरी तरह से स्ट्रेट रहेगा और हम इस तरीके से बनाते हुए क्रेसेंट लंज में आ जाएंगे और थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। अब हम यहाँ से अपनी ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर। इसको हम 5 टाइम्स रिपीट करते हैं। एक्सहेल, इनहेल 1, exhale 2, 3, 4 and 5. यहाँ पे हम अपना यहाँ नीचे रख देंगे, इन हाथों को यहाँ पे रख दें और ये हाथ ऊपर, और जितना हो सके पीछे हम बेंड करने की कोशिश करेंगे। बेंड, योर हैंड शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट, बेंड as much as you can. Hold it for a 5 seconds. And come back. जितना हो सके बेंड करें। अब पूरा यहाँ पे एक स्ट्रेच फील करेंगे। Two and one more last round. And 3. यहाँ से सीधे हम त्रिकोणासन में जाएंगे। ये पैर स्ट्रेट, राइट लेग जो है वो थोड़ा सा सामने की ओर, एंड बेंड। आपके हाथ पूरी एकदम स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। ये आर्म, it should be proper in straight line. Come to downward dog position. अब यही हम रिपीट करेंगे दूसरे पैर से।
यहाँ से अपने पैरों को इस तरीके से कर लें। आपकी हील्स आपके फर्श के पास होने चाहिए 90 डिग्री एंगल पे। कोशिश करें, नहीं हो पाता तो आप इसको बेंड कर सकते हैं, जितना हो सके उतना कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रखें। ये भी पूरे एकदम फर्श के सीध में होना चाहिए, आगे पीछे बिल्कुल नहीं। वन, टू, थ्री, 4 and the last one, 5. ना इस हाथ को यहाँ पे रखते हुए ये हाथ हम अपना पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे और स्ट्रेच करेंगे। वन, टू, जितना हो सके स्ट्रेच करें, एंड 3। अब यहाँ से हम सीधे त्रिकोण आसन में जाएंगे। अपने पैरों को ऐसे रखें सीधा, हाथ को इस तरीके से, और धीरे बेंड हो, हाथ बिल्कुल सीधे। Lock your knees, should not be bended. होल्ड करें। आपकी दृष्टि ऊपर की ओर होनी चाहिए, ऊपर वाले हाथ को आप देखने की कोशिश करें। एंड कम बैक टू डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। अब यहाँ से सीधे अपने घुटनों को नीचे फर्श पे, यहाँ से हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज आपके बैक मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको अगर बैक पेन या डायबिटीज़ या कोई भी बॉडी की अगर कोई भी किसी भी तरीके का पेन है तो ये उसको इम्प्रूव करने में, उस पेन को ख़त्म करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। तो इनहेल और एक्सहेल के साथ हम इसको कोशिश करेंगे करने की। इस तरीके से आप मैट पे हो जाए। पहले हम इनहेल करेंगे। इनहेल करते हुए अपने बैकबोन को ऊपर की ओर कर्ल करेंगे, जितना हो सके ऊपर की ओर उसको खींचेंगे, कर्ल करने की कोशिश करेंगे। और एक्सहेल के साथ हम नीचे की ओर कर्ल करने की कोशिश करेंगे अपनी बैकबोन को, और जितना हो सके उतना करिएगा। इनहेल, एक्सहेल, ऊपर की ओर देखिए एक्सहेल के साथ। इनहेल, नीचे देखिए, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale।
अब हम योगा मैट पे बैठ जाते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, जिससे कि आप आगे के योगा आसन आसानी से कर पाएँ। पहले हम 3 बारी ब्रीदिंग करेंगे, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इनहेल, एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल, exhale, inhale, open your chest and exhale. आप अपने सुखासन में बैठ जाइए या जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप उस पोजीशन में बैठ जाएं। अपने हाथों को खोलें, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए पीछे जाएं। जितना हो सके अपने चेस्ट को ओपन करिए, पूरी एयर अपने लंग्स में जाने दीजिए। इनहेल, एक्सहेल, स्क्वीज योर बेली। अपने स्टमक को स्क्वीज करिए अंदर की ओर, होल्ड करिए। देन अगेन इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, squeeze your tummy inside. One more time, inhale, exhale, inhale, exhale. अब हम अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। अपना लेफ़्ट हैंड राइट नी पे और राइट हैंड जितना हो सके पीछे बेंड करने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, दूसरे साइड। Inhale, squeeze your tummy as much as you can. Exhale, inhale, exhale, inhale, एक्सहेल। अब ये हम अपने राइट हैंड को यहाँ पे फर्श पे रखेंगे और लेफ़्ट हैंड जितना हो सके स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। बेंड होइए, जितना बेंड हो सकते हैं आप बेंड होइए। कम बैक। अब हम यही दूसरे साइड से भी करेंगे। दोनों हाथों, इस हाथ को ऐसे रखते हुए ये हाथ ऊपर की ओर, सर के ऊपर से जाएगा, ऊपर की ओर देखें। अपना पैर ये ज़मीन से लगा के रखें। ये आपका ऊपर की ओर नहीं आना चाहिए, नी आपका आपके फर्श से हमेशा लगे रहने चाहिए।
यहाँ पे होल्ड करिए। वापस एक और राउंड करेंगे हम यहाँ पे। वापस आ जाइए दूसरे साइड में। एक्सेल एंड कम बैक। इसको ही थोड़ा हम और इंटेंस बनाते हैं। वो कैसे? अब ये अपने एल्बो को इस तरीके से नीचे रखें और फिर अब इनहेल करिए। इनहेल एंड कम बैक। दूसरे साइड से इसको यहाँ फर्श पे रख दें और हाथों को यहाँ से हम करेंगे गौमुखासन, काउ फेस पोजिंग। इसके लिए आप लेफ़्ट लेग को नीचे इस तरीके से और राइट लेग को, राइट पैर को ठीक उसके ऊपर, दोनों घुटने एक दूसरे के बिल्कुल सीध में आने चाहिए। ये एंकल को अगर कोशिश करें, अगर हो पाता है तो आप इस हिप के नीचे रखें और नहीं तो आप इसको साइड में भी रख सकते हैं। इस तरीके से स्पाइन स्ट्रेट। जो पैर ऊपर की ओर रहेगा वही हाथ ऊपर की ओर, ऊपर से जाएगा। इस हाथ को पीछे की ओर और ये हाथ इस तरीके से, और पीछे इन दोनों हाथ को आप बांधने की कोशिश करें। ब्रेथ शुड बी नॉर्मल। होल्ड करिए इस पोजीशन में जितनी देर तक आप कंफर्टेबल है। इस पोजीशन में होल्ड किए रहिए 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जब तक भी आप कर पाए। और फिर आप हाथ छोड़ते हुए धीरे से नीचे आए। अब हम अपनी पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए दूसरे साइड से भी करेंगे। के लीजिए, दाहिना पैर नीचे, बायां पैर ऊपर, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर सीधे में। अब क्योंकि ये पैर ऊपर है, बायां पैर, तो मैं अपना बायां हाथ ऊपर की ओर लेकर के जाऊंगी। दाहिना हाथ पीछे और इसको बांधने की कोशिश करें। स्पाइन शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट। ये आसन, गौमुख आसन, आपके पूरी बॉडी पे वर्क करता है। आपके शोल्डर से लेके आपके हैंड्स से लेकर के स्पाइन को तो पूरी तरीके से एक्टिवेट रखता है। आपके पैरों की जितनी भी स्ट्रेच हो सकता है उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करता है। तो ये टोटल आपकी पूरी बॉडी को एक्टिवेट करता है। धीरे से आप नीचे आ जाइए।
मत्स्येंद्र आसन। ये आपके स्पाइन के लिए, आपके बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। सीधे बैठ जाएं, अपने लेफ़्ट लेग को ऐसे मोड़ के राइट लेग को ऐसे रखें, राइट लेग ऊपर, लेफ़्ट लेग नीचे, और हम अपने लेफ़्ट हैंड को इधर से ट्विस्ट करके यहाँ पे पकड़ेंगे और अपना राइट हैंड पीछे, दृष्टि पीछे की ओर, पीछे देखेंगे। स्पाइन आपकी पूरी तरह से सीधी रहे। अगर आपकी स्पाइन की पोजीशन सही रहेगी तो ये आपको फ़ायदा भी उतने ही अच्छे से करेगा। अलाइनमेंट उसका पूरी तरह से सीधा होना चाहिए, सही होना चाहिए, जिससे ही आपको अच्छा बहुत तेज़ी से फ़ायदा मिलेगा। और अब यही हम दूसरे साइड से भी करेंगे। अब दाहिना पैर नीचे और बायां पैर आपका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर, ये आपकी पूरी बॉडी पे काम करता है। आपके पेट पे अगर आप फैट है तो उसको भी बर्न करने में ये आपकी पूरी हेल्प करेगा। स्पाइन को क्योंकि ये पूरी तरह से ट्विस्ट करता है, तो अगर स्पाइन में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और अगर पेन है तो उसको भी ख़त्म करता है ये। यहाँ से हम करेंगे बैलेंसिंग पोज। मैट पे इस तरीके से बैठ जाए, स्पाइन एब्सोल्युटली स्ट्रेट, और धीरे से अपने दाहिने हाथ और बाएं पैर को उठाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 and 5। अगर आप बैलेंस कर पाए देन तो इट्स ओके, नहीं तो फिर आप अपने पाम को थोड़ा भी लगे कि आप गिरने वाले हैं तो नीचे रख लें। अब दूसरे साइड से पैर को जितना हो सके ऊपर करें, नीचे की ओर ना रखें, ऊपर करें, तभी आपके यहाँ बैक पे आपको स्ट्रेच फील होगा। 1 2 3 4 and 5। वापस आ जाइए। फिर से 1 2 3 4 and 5। दूसरे साइड से 1 2 ट्राई टू फ्लाई, 3 4 and 5। One more round। 1 2 3 4 and 5। Slowly come back। Last round। 1 2 3 4 and
5. Now come to downward dog position. अपने एंकल को पूरी तरह से फ्लोर पे टच रखें, ऐसे नहीं, कोशिश करें इस तरीके से रखने की। शुरू में मुश्किल होगी, बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड धीरे से आप भुजंग आसन में आ जाइए। होल्ड करें यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से अप करिए ऑफ द फ्लोर। अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आप नीज को नीचे रख सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से होल्ड करिए। 1 2 3 4 एंड 5। चाइल्ड पोज में आ जाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स योरसेल्फ। फिर से करेंगे भुजंगासन। One, 2, 3, 4 and 5. Up. Off the mat. 1, 2, 3, 4 and 5. चाइल्ड पोज में अपनी ब्रीदिंग आप नॉर्मल रखिए। वन मोर लास्ट राउंड। वन 2 3 4 and 5. Come up. 1 2 3 4 and 5. Slowly keep your knees down. Come to child pose. किसी भी योगा को पूरा होने के बाद कूल डाउन करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहती है, तो उसको हम कूल डाउन कर लेंगे, नॉर्मल कर लेंगे, उसके बाद से ही हम अपना योगा ख़त्म करेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा जो मेरा फेवरेट है वो है चाइल्ड पोज, सिट इन वज्रासन। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, बेटर टू सिट इन वज्रासन। शुरू में थोड़े से यहाँ पे आप थोड़े मसल पेन्स होंगे, स्ट्रेच फील करेंगे आप, तो धीरे धीरे 2-3 दिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे बिल्कुल आप वज्रासन में आराम से बैठ पाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, relax yourself. Connect yourself with your breath. And slowly come up.
तो ये था हमारा आज का बहुत ही सिंपल योगा फुल बॉडी वर्कआउट। इसको आप डेली शुरुआत में इसको प्रैक्टिस करें। सारे आसनास बहुत ही सिंपल हैं, इसको आप कभी भी कहीं भी आसानी से कर पाएंगे और आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही बढ़ती चली जाएगी। आप डे बाय डे अपने आप में बहुत ही अच्छा फील करने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।